Good morning, students. Welcome you all in this today's session that is also related with internet. And as you all know that we already covered the networking concepts and the devices what we want to use. The devices what we want to use to establish a network. In our previous lecture, we also studied about website, and I am starting from here again that what is website. I told you that website is a collection of web pages, means whatever information we want to extract from internet, that is resides in the pages, that is called a web page, right? And in a web page we can get information in the form of text material or photographs, which you can say images, graphics, audio, and in the form of video and animation, right? So all the information is stored in the web pages, and the collection of web pages or group of web pages on the same topic is called a website, right? So these web pages are written in HTML, hypertext markup language. I told you that what is hyper and what is text, what is markup, and what is language. I told you in my previous lecture. So I am directly coming on the components of a website, which makes a website. Number one, uh, domain name, as we have four main components. In four main components, number one is domain name. So what is domain name? To share any information, every computer connected to the internet should have a unique address. द आई कैन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये मैंने बताया था आपको कि ये एक इस तरह की एक ब्रांच है या इस तरह का एक डिपार्टमेंट है इंटरनेट का, जो कि हर एक वेबसाइट को एक नंबर या एक नेम दे देता है। दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, राइट? हैज डिजाइंड अ सिस्टम टू प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस। यूनिक मीन्स कि जो किसी दूसरे को नहीं दिया जाता, जो आपको मिल गया है वो किसी और वेबसाइट को नहीं मिलेगा। सो प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस to each computer in form of numbers of characters. The character based addressing system is known as domain name. नंबर बेस्ड, ठीक है, करेक्टर बेस्ड, सॉरी, करेक्टर बेस्ड जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट का नाम है thecenturyschool.com, राइट? दिस इज डोमेन नेम। वेयर एज द नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम इज नोन एज आईपी एड्रेस। और इसी को ही जब हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक 198.168.2.1, इस तरह से कुछ एक नंबर बन जाता है। सो एवरी वेबसाइट हैज बोथ number one domain name, and if we convert this domain name into the number system, then it will call IP address, right? Internet protocol address, IP address. For any website, the domain name is the unique name given to it, which visitors use to identify uh, एंड लोकेट दैट साइट। मीन्स के आप एक एक जो यूजर होता है, जो एक कंप्यूटर यूज करेगा, वो दोनों तरीके से किसी वेबसाइट को ढूंढ सकता है। उसके नाम के अनुसार भी ढूंढ सकता है। जैसे अगर इफ यू राइट इन एड्रेस बार thecenturyschool.com, द सेम वेबसाइट विल ओपन, एंड इफ यू राइट इट्स आईपी एड्रेस, मीन्स उसके जो नंबर से भी एक नाम होता है, तो वो नंबर भी अगर आप डालोगे तो सेम वेबसाइट ऑल्सो ओपन, ठीक है? देन वी कैन यूज बोथ वेज। To understand the domain name system better, let us take the analogy of a painting exhibition where your paintings are on display. Visitors cannot see your paintings unless they know the physical address of the exhibition building. Okay, इसने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि मान लीजिए आपने कोई एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया है कहीं पे, और आप चाहते हो कि आपने किसी एक रूम के अंदर, किसी बिल्डिंग में कोई रूम लिया है और उस रूम में आपने पेंटिंग्स लगा दी हैं सारी, लेकिन लोग तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे जब तक आप फिजिकल एड्रेस उनको नहीं दोगे अपना, कि ये चीजें हैं कहाँ पे स्टोर्ड, ठीक है ना? तो इसी तरह से डोमेन नेम और आईपी एड्रेस जो है, दिस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट।
राइट, कि इंटरनेट पे वो कहाँ पे हैं, तो वो एड्रेस हो गया आपका। और अगर वो दैट एड्रेस इफ इट इज इन अल्फाबेट्स means character based, then it will call domain name, and when it अगर ये सिर्फ आपका नंबर में आ जाए then it will call IP address. I hope it is clear. Now site file, what is site files? Site files have all the elements of your website which may include images, documents, template and HTML files. Keeping the above said analogy in consideration, site file can be related with the paintings in the exhibition building. अब आप देखिए कि साइट फाइल्स क्या हैं। एक वेबसाइट के अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियो, जितने भी फाइल्स हैं विच यू यूज्ड इन अ वेब पेज, देयर स्टोरेज प्लेस इज कॉल्ड साइट फाइल्स। ठीक है, जहां पे वो स्टोर होती हैं बैक एंड पे, वो उसकी साइट फाइल है। सेम ऐसे ही, यानी जो 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 मटेरियल है इंटरनेट के ऊपर, दैट इज साइट फाइल्स। ठीक है, इस तरह जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था एग्जीबिशन का, तो एग्जीबिशन के अंदर साइट फाइल्स क्या होंगी, हमें क्या चीज शो करनी है, आवर पेंटिंग्स, राइट। सो जो पेंटिंग्स हैं वो हमारी क्या बन गई, साइट फाइल्स। ऐसे कंप्यूटर के अंदर इफ यू आर यूजिंग अ वेब पेज, देन if you are using a web page, then the material and the files and the links are which you attached and which you insert in the web page is called site files. It may be a photograph, graphics, audio, video, text file, whatever you use, right? Next is web host. What is it? Web hosting is the service that provides space on the internet for the maintenance of the website. Like any other computer, web host or hosting servers run on different operating systems. Commonly used operating systems for hosting servers are Apache, yani Linux, and Windows. Considering the above analogy, we can relate the hosting server with the exhibition building, which is exhibiting your paintings. What it means, web host. Web host means a space on internet which can maintenance, which can repair or which can change, which can modify your website. यानी ऐसा तो है नहीं कि हमें हमेशा ही ऐसा तो होता नहीं है कि हमें जो एक बार वेबसाइट बना दी हमने इसमें चेंज नहीं करना है, because nowadays we are using dynamic website. What is dynamic website? In which we can make changes on regular basis. If there is no change, then it is a static website. Static means fixed, रुका हुआ, स्थिर, right? But dynamic, which we can make changes on regular basis or even many times in a day, right? तो जब भी कुछ चेंज आता है, अगर आप चेंज कर पाते हैं, दैट इज योर डायनामिक वेबसाइट। और जब आप चेंज नहीं करते हैं, जो एक बार डाल दिया वो आपका सेम रहता है, दैट इज स्टैटिक वेबसाइट। तो आजकल हम डायनामिक वेबसाइट यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें लगातार काम करते रहना पड़ता है वेबसाइट पे। तो वो लगातार काम करने के लिए हमें जो एक स्पेस की जरूरत है इंटरनेट के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड वेब होस्ट। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी खराब हो जाती है, या कोई बाइक खराब आपकी हो जाती है, कोई भी आपका व्हीकल है वो खराब हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम कहाँ लेके जाते हैं, उसके सर्विस सेंटर पे, या कहीं पे किसी ने अगर कोई इस तरह से रिपेयर की शॉप खोली हुई है या गैराज बनाई हुई है, वहां पर हम उसको लेके जाते हैं, बिकॉज जब उसको ओपन करेंगे तो हमें स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सेम वे, इफ यू वांट टू मेंटेनेंस आवर वेबसाइट, देन वी नीड सम स्पेस, एंड दैट स्पेस इज वर्चुअल। इन रियलिटी देयर इज नो स्पेस। ऐसा नहीं है कोई हमने रूम ले लिया वहां पे वेबसाइट खोलनी है, नो, इट्स स्पेस should be provided by the internet on internet only, right? So when we using space on internet to maintenance our website, it is called web host. और सेम अगर पेंटिंग वाला एग्जांपल जो हम ऊपर से लेके चल रहे हैं, अगर उसको ही हम आगे इससे कोरिलेट कर दें, तो जो बिल्डिंग है जहां पर हमने एग्जीबिशन लगाया हुआ है, दैट इज आवर वेब होस्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्पेस बन जाता है बेटा। उसके बाद है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज CMS? A content management system aids in managing the content of a website. It helps the author in creating, designing, and modifying the content of a website. Look, students, web host is a space where you can maintain your website. But a content management system aids in managing the content of a website. लेकिन जब ये काम हो रहा होता है, जब आप चेंजमेंट कर रहे होते हो, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको आप CMS बोलते हो। ठीक है, वर्डप्रेस,
Joomla and Drupal are the examples of popular content management system. ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट के डाटा को मैनेज कर सकते हो, राइट? CMS can be related to the exhibition organizer who helps a painter in organizing his painting exhibition. और अगर सेम एग्जाम्पल को हम वापस यहाँ भी अप्लाई कर दें तो यहाँ पर CMS क्या होगा? CMS यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि जो उस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, जो उसको मैनेज करेगा कि पेंटिंग कहाँ रखनी है, कैसे लोग आएंगे, ये सारी मैनेजमेंट जो करेगा, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS। और कंप्यूटर के अंदर भी जब वेबसाइट को चेंज किया जा रहा होता है तो जो लोग चेंज करते हैं, जो ग्रुप होता है, जो सिस्टम वो अडॉप्ट करते हैं, दैट इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पेज। Next is web portal. I told you, I think already in class, so I'm taking only one minute from you to explain web portal. Web portal, what is a web portal? Web portal is a gateway to wide range of internet services such as email, search engines, e-commerce, etc. Look students, I told you that if we want to know about your state, about our state, as we can take the example of Haryana, then there are thousands of websites which is related with Haryana topic, or hundreds of more than 100 of websites which is related with government work of Haryana government, right? So if we it is not possible to know the name, exact name of the website which we want to use. So every government develop a page in which they insert the links of another websites on only single page. एक ऐसा पेज बनाते हैं जिसके ऊपर सारे वेबसाइट्स के लिंक लिखे होते हैं, लिंक इंसर्ट किए होते हैं, फ्रॉम देयर यू कैन ओपन, राइट? सो इट इज अ वेब पोर्टल, यानी वेबसाइट का एक पोर्टल। पोर्टल मैंने एक ऐसी जगह जहां पे सारी वेबसाइट्स के लिंक्स रखे हुए हैं, राइट बेटा? सो यू कैन यूज डायरेक्टली अ वेब पोर्टल फ्रॉम वेबसाइट। तो वहां से जो मर्जी आप ओपन कर सकते हैं। I am giving you an example of it, that as we are taking example of Haryana, suppose you want to participate in any sport, then you have to go to the website of sport. If you want to know the any competition like dance, singing, or writing, or any maths quiz, science quiz, SST quiz, or any computer quiz, any subject quiz, then you have to go on different websites, right? If you want to fill your fees of any college or of any university, then you have to use their web page. In the same way, if you want to book any ticket, railway, airplane, right, or buses, then you have to go their website. But in a web portal, all website links are inserted in a single page, on a single place, you can say. From there, you can use which website you want directly by clicking on them, right? तो आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है वेब पोर्टल के अंदर। सो दिस इज द न्यू ट्रेंड ऑफ इंटरनेट, दैट जो भी इस तरह की डाटा वाली वेबसाइट्स हैं जिनके अलग अलग पोर्शंस हैं, अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे मैंने अभी एक गवर्नमेंट का एग्जांपल आपको दे दिया, इसी तरह से मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना? जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो वो अपना एक वेब पोर्टल क्रिएट कर देती हैं। उस वेब पोर्टल पे सारे के सारे लिंक्स आ जाते हैं, एंड कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओपन द रिलेटेड वेब पोर्टल एंड यू कैन चूज लिंक अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पोर्टल। क्या बोलेंगे उसको? वेब पोर्टल, ठीक है? तो वेब पोर्टल इज अ पेज ऑन विच यू कैन गेट एवरी लिंक of the related material or related topic. Now differentiate between a website and a web portal. I hope you can understand now. Definition: a web portal is a gateway of wide range of internet services. एक ऐसा गेटवे मीन्स कि एक ऐसा वेबसाइट्स के अंदर जाने का रास्ता है कि जो एक पेज मिल जाता है आपको
उसके ऊपर आप अलग अलग तरह के इंटरनेट सर्विसेज के लिंक्स हैं, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ओनली। ये सिर्फ एक वेबसाइट होती है और वेब पोर्टल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर इट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन मेजर लाइक लॉगिन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल जीमेल अकाउंट एंड रेडिफ मेल अकाउंट। यहाँ पर एक बात बताना बड़ा जरूरी है वेब पोर्टल पे। मान लीजिए एक वेब पोर्टल पे हरियाणा के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो हरियाणा के वेब पोर्टल पे मान लीजिए आपके पास मोर देन 50 लिंक्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू योर इंटरेस्ट एरिया इज इन ओनली 10 लिंक्स, तो बाकी के 40 लिंक्स आप क्यों देखेंगे या उससे भी ज्यादा के लिंक आप क्यों देखेंगे? सो यू कैन क्रिएट अ लॉग इन योर ओन आईडी इन दैट वेब पोर्टल। आप अपनी एक आईडी बना देंगे जिसके अंदर आपको एक लॉगिन नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप अपनी मर्जी से वो लिंक्स को इंसर्ट कर सकते हो। मीन्स नेक्स्ट टाइम whenever you visit your web portal login ID, then only 10 links will open into your account। वो सिर्फ वही 10 लिंक्स आपको नजर आएंगे, अंदर बाकी के 40 या उससे 40 से ज्यादा वाले लिंक आपके पास नहीं आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज देर इज नॉट द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। ओके, सेम ऐसे ही वेबसाइट के अंदर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, उसमें तो सिर्फ आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन यहां पर ऑथेंटिकेशन होता है कि जब तक आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड नहीं डालोगे तो यू कांट विजिट योर ओन वेब पोर्टल आईडी, राइट। सो अब इसी तरह पर्सनलाइजेशन, यस यू कैन पर्सनलाइज इट। अभी मैंने आपको बताया कि अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हो, बट अ वेबसाइट एक्सटेंशन to fulfill the needs of a wide range of users, a user can access and use the provide information as per his desire। यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, यू कैन एक्सेस, बट यू कांट पर्सनलाइज इट बिकॉज दिस डाटा इज फॉर एवरीवन। और हो सकता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करके डाटा को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट इज टोटली अपॉन यू, यू कांट पर्सनलाइज इट। इसको आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हो किसी वेबसाइट को। उसमें जो डाटा है आप सिर्फ रीड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन, ये भी आपका पर्सनलाइजेशन की तरह ही है, जो जो आप चाहें इसमें सेटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आप कोई भी सेटिंग नहीं कर सकते। लिंकेज, इट इज जनरली लिंक टू वेरियस वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड द रिलेटेड वेब सर्विसेज। यस बिल्कुल, जो आपका होम पेज होता, जो आपका वेब पोर्टल होता है, इसके अंदर लिंकेज ही होते हैं सारे के सारे, और कुछ होता ही नहीं है ना। इट जनरली लिंक टू इट्स ओन वेब पेज। और एक वेबसाइट जो होती है, मान लीजिए जैसे स्कूल की वेबसाइट है एंड वी हैव मान लीजिए 20 और 30 पेजेस इन आवर वेबसाइट, देन द ऑल वेब पेजेस आर रिलेटेड विद ईच अदर ओनली, नॉट विद अनदर वेबसाइट। आर यू गेटिंग मी? दैट every page is related with its own website but not with others website, but in web portal every link is related with another website। clear? then example इसने दे दिया यूनिवर्सिटी और कंपनी वेबसाइट, सर्च इंजन्स, ये तो हो गए आपके वेब पोर्टल्स। और इसमें इधर एग्जांपल दे दिया है kips.in या जो भी नाम आगे लिखे हैं, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, www.thecenturyschool.com, right? So this was the difference between web portal and a website. I hope you understand it. To conclude, we can say that a web portal is loaded with a multiple of features and the website is just information centric। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अंत में अगर हम कह सकें तो ये बात अगर हम कहना चाहें तो ये बात कह सकते हैं कि वेब पोर्टल जो है वो मल्टीपल फीचर्स के साथ लॉडेड होता है, यानी बहुत सारे वेब पेजेस के लिंक उसमें होते हैं, जबकि वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है, राइट। नाउ अभी हम जो बात कर रहे थे कि व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ वेब पेज। अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेब पेज? A web page is a digital page which may contain text, hyperlinks, videos, audios, images, tables, etc. This is I told you earlier, right? It is a commonly written using language which is the hypertext markup language, HTML, and is stored on a web server. Each web page is identified by a unique web address called URL. इसके अंदर जो भी आपका वेब पेज होगा उस वेब पेज का इंटरनेट पर एक एड्रेस हो जाएगा। whenever you store your website or web page on the internet, then it will provided
यूनिक एड्रेस दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ठीक है। तो ये आपका एक एड्रेस आपको मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली उस पेज को ओपन कर सकते हो। ओके बेटा, अब कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज, अब वेब पेज को के क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके बारे में हम लोग रीड कर लेते हैं। Although anatomy of one page on one web page may differ with that of another, there are multiple ways in which a web page can be designed. However, there are some common element which every web page contains. वैसे तो बेटा बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं जिनकी हेल्प से आप वेब पेज बना सकते हो, बट यू कैन चूज योर वे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और योर रिक्वायरमेंट, you can say, right? So let us discuss with the basic elements. स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज। अब देखिए, अब एक वेब पेज जो आपको नजर आ रहा है उसमें क्या क्या होता है। सबसे ऊपर उसका नाम होता है, यहाँ पे टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द करंट वेब पेज, ये नाम आ जाएगा जो आप नाम लिखोगे। उसके बाद है यहाँ पर ये एक जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से एक वेबसाइट है, उसका इसने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहले ऊपर जो नाम होता है दैट इज टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल ऑफ करंट वेब पेज, राइट। सेकंड इज these are the menus in which you will get all the links. Menu or navigational links are the hyperlinks used to move between links pages of the website, ठीक है। इसी तरह से if I try to open our school websites, let's have a look. If net is okay, then it will open. Okay, and until it is opening, let's move on our chapter. Okay students, these are the menus or navigation links, you can say it. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो then we have some more options, and these every more option is related with another web page. Okay, let's see what happening there. Okay, it's coming. Look students, when I click on it, about us, look, these are the navigation, ठीक है, नेविगेशन या these are the menus, ठीक है। ये सारा मेन्यू बार हो गया आपका, और ये नेविगेशन एरिया बोलते हैं। इसमें अगर मैं किसी के लिंक पे ऊपर भी क्लिक करूंगा देन इट विल ओपन अनदर वेब पेज। देखो ऊपर अभी क्या लिखा हुआ है, thecenturyschool.com, और जब मैं इसके ऊपर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, व्हेन आई ओपन इट, वेट फॉर, लुक, अब एक पेज आ गया है, ऊपर आगे क्या ऐड हो गया है, मैनेजमेंट ऐड हो गया है, और ये आप देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टर सर की पिक आ गई, उनका नाम आ गया, और जो उन्होंने मैसेज दिया हुआ है यू कैन रीड इट, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखो एड्रेस चेंज हो गया, पहले सिर्फ यहीं तक था, अब ये वाली चीज आगे ऐड हो गई है हमारे। अब अगर किसी और पे जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल ओपन अनदर वेब पेज। अब देखो अब यहाँ क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, you can see it, very first pick is computer lab, और ये बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्कूल के यहाँ पे आ गया है, राइट बेटा। तो सेम थिंग आई एम टेलिंग टू यू हियर, these are the menu or navigational links in which we can open different pages. After that, ये जो ऊपर का एरिया होता है दैट इज हेडर एरिया, कंटेन्स द कंपनी नेम, लोगो, रेलिवेंट टेक्स्ट और सर्च बॉक्सेस। सेम वे इफ यू विजिट आवर वेबसाइट, तो ये जो एरिया है ऊपर का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये सारा का सारा अपना क्या है, ये भी हमारा यहाँ पर हेडर एरिया है, यहाँ से सारा मेन्यूज तक, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है कंटेंट एरिया कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर हम अगर नीचे आए, इसके मैं होम पे चलता हूँ एक बार, सो दैट वी कैन कंक्लूड।
लुक स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है आपका सारा, दिस इज योर कंटेंट एरिया, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, दिस इज कंटेंट एरिया। ओके, उसके बाद है फूटर एरिया कंटेंट्स कॉपीराइट नोटिसेस वेब करेक्ट या फिर कोई एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ आता है नीचे इसके। अगर हम भी इसके नीचे जाते हैं तो ये देखो ये रहा एरिया, ये हर एक वेबसाइट के नीचे मिलेगा। ये स्कूल के बारे में है, कॉन्टैक्ट अस करना है, फ़ोन नंबर, और ये ईमेल आईडी, और ये फेसबुक और ट्विटर और स्काई वगैरह और लाइकेंडिन पे अगर आपने किसको फॉलो करना है, कुछ करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेल करना है तो ये यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव एवरी ऑप्शन इन आवर वेबसाइट। सेम वे हेडर एरिया, कंटेंट एरिया और फूटर एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पेज भी ओवर। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ इस एरिया में कंटेंट एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज। द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज इज मेड अप ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? इट रेफर टू अ डिजिटल टेक्स्ट दैट हैज अ यूनिक फीचर of linking to other documents or web pages, right? Web pages. It is generally highlighted in some different color of a web page. एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होता है बेटा, और उस नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आपको वो अलग से उसकी पहचान हो जाती है। दे आर ब्लू इन कलर, दे आर बोल्ड, एंड whenever you move your mouse cursor on these links, they are automatically convert into hand shape। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको हाइपर टेक्स्ट का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे देखो जैसे आप जाओगे तो ये हैंड शेप में कन्वर्ट होगा। और ज़्यादा इसमें अगर करना है तो आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन। ये देखो यहाँ पे आ गया है। ये जो आपको इसमें सबसे अलग क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना। ये देखो ये ब्लू भी है, अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है थोड़ा, एंड व्हेन आई ब्रिंग आवर माउस एरो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू हैंड शेप, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट इट विल ओपन अगेन। ठीक है, सेम वे इट रेफर टू अ डिजिटल टेक्स्ट दैट हैज अ यूनिक फीचर ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज। जैसे मैं उस पर क्लिक किया तो वो उसने अदर डॉक्यूमेंट या एक अलग वेब पेज खोल दिया। इट इज जनरली हाईलाइटेड इन सम डिफरेंट कलर, अभी जो ब्लू कलर में हमें नजर आया था। When you click on the hypertext, it opens in a new web page. जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो नया पेज खुल गया। Hypertext may be in the form of text, graphic, video और audio। ये hypertext का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर आएगा। It can be anything। ये कोई ग्राफिक भी हो सकती है, फोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड इट विल रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेब पेज। ठीक है, इट इज देन called as hypermedia as it is not confined to only text। अगर ये टेक्स्ट है तब तो हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, अगर कोई फोटो वगैरह है, वीडियो है, ऑडियो है, देन इट इज हाइपरमीडिया। ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो मीडिया एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हाइपर लिंक। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हाइपर टेक्स्ट इन। अब इस हाइपर टेक्स्ट के अंदर जो लिंक बनता है, ये जो लिंक यहाँ पे बना, आप देखिए, इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। ये देखो ये और भी लिंक्स हैं। ये जो अब ये तो बात पता लगी कि ये हाइपर टेक्स्ट है, लेकिन ये लिंक कैसे इंसर्ट इसके अंदर होता है, दैट इज हाइपर लिंकिंग। इसलिए लिंक किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो कुछ और ओपन होगा, ये देखो ये ओपन हो गया। ठीक है, और मैं इसमें विजिट करूं, ये देखो फोटो कोलाज ग्रिड, ये एक और पेज खुल गया। यहाँ पे जाएंगे फिर वापस वहीं आ गए। ठीक है, सो इन दिस वे जब आप इस तरह की हाइपर टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। ठीक है, एंड फाइनली सोर्स कोड। व्हाट इज सोर्स कोड? इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। It also defines the contents of the web page. These instructions are used by the browser to display the page. Very beautiful feature it. What is it? Source code क्या हुआ? It contains instructions about the layout and structure of a web page. यानी ये वो कोड है, ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या क्या शो करना है वेब पेज के ऊपर, कैसा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो अपने वेबसाइट का,
जैसे ये हमने वेबसाइट बनाई हुई है अपने स्कूल की, कि इस एरिया में, ऊपर के एरिया में ये वाला कलर होगा, ये हम लोगो लगाएंगे और यहाँ पे मेन्यूज आएंगे और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स डिस्प्ले होंगी। आफ्टर दैट स्कूल के बारे में आएगा, उसकी एक पिक्चर आ जाएगी, नीचे हाइलाइट्स आ जाएंगे, मैप आ जाएगा और फाइनली हमारा नीचे एड्रेस बार शुरू हो जाएगा। ये जो एक पेज का जो डिवीजन हमने किया हुआ है, ये पेज का डिवीजन जो जो बेटा हमने किया हुआ है, इसको ही हमने क्या बोलना है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो ये जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है सारी की सारी, और इसको लिखने के लिए हम HTML यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगला लेसन हम लोग वही शुरू करेंगे अपना HTML, जिससे थोड़ा प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा बेटा अपना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सोर्स कोड इज अ प्रोग्राम in which we can define everything about our web page, how we want to display our web page and what we want to display on our web page। दोनों बातें, ये बातें हो जाएंगी, क्या दिखाना चाहते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ तक मैं आज ये लेसन ओवर कर रहा हूँ। आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर बिकॉज वी हैव 5 minutes। in between you can ask any question if you want। I am going to unmute you all, and during this period no need to leave the meeting because I am going to take your attendance by screenshot, otherwise your absent will mark। Now you can ask anything, unmute yourself and ask anything about it। Students, do you want to ask anything? No sir। No sir। Okay. No sir। Okay beta, then read this lesson very carefully, and very soon it will over, and after that we will start our HTML lessons, which are totally on a practical based, right? So stay at home, be safe, have a nice day।